Hello everyone, good evening. I am Purnima from Fertility Dost. And today in our live, we have very known doctor from Calcutta, Dr. Pragyanika with us. And with her, we are going to talk about very interesting topic. I would say the topic you all would love to listen about it. Yes, the successful embryo transfer. We know during this situation we are like talking about this, what to do, should we take vaccination, should we go for egg pickup and then take a rest, then go for second dose of vaccination and then embryo transfer. So इस पूरे की पूरे कॉन्वर्सेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. बॉडी को प्रिपेयर करना है एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले कैसे करना है, और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं या कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमको लेने चाहिए. बिकॉज in this situation, in this, I would say the situation is improving day by day, but again बहुत hassles हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं, और उन सारी चीजों के लिए we have with us today the Dr. Pragyanika, so that we can talk about it. हम बात करें इस बारे में जो आपके डर हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर को लेके. हम उन चीजों को समझें कि क्या वो सच में वो डर आपके जायज हैं या फिर कहीं एक मिथ है एम्ब्रियो ट्रांसफर को लेके. एंड दिस कॉन्वर्सेशन आई वुड अप्रिशिएट अगर आप खुल के अपने सवाल पूछेंगे. जस्ट आस्क योर डाउट्स because we are here to clear your doubts. This session is not for me or doctor. This session is for you. So please ask your queries. And if you think कि आपको यहाँ Facebook पे पूछना अजीब लग रहा है या you don't want to be in this session with your own name, so you can just message on our company number, our official number, and we'll ask your query as anonymous. We know the situation is tricky, but yes, again, we are here to solve your queries, to change the mood. एम्ब्रियो ट्रांसफर है, फ्रोजन है एम्ब्रियोज, कैसे करें, कब यूज करें, उसके ये ग्रेड्स हैं, हमें करना चाहिए ट्रांसफर कि नहीं, और शुड आई गो फॉर अनदर एग पिकअप. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. एंड व्हेन वी विजिट आवर डॉक्टर तो हमें लगता है कि ये बात पूछे ना पूछे, डॉक्टर क्या सोचेगा हमारे बारे में. डॉक्टर को लगेगा यार ट्रीटमेंट करवाने आ गए, पता ही नहीं क्या सवाल पूछने. तो वो सारे सवाल, वो सारे डाउट्स आज आप हमारे साथ क्लियर कीजिए. एंड we'll try to answer the questions as many as we can. कोशिश करेंगे हम आपके सवाल लेने की, और अगर आपको लगता है कुछ रह गया सो प्लीज लेट अस नो. डॉक्टर कोलकाता में है, यू कैन मीट हर, यू कैन विजिट हर, यू कैन इवन टेक अ वीडियो कंसल्टेशन और टेली कंसल्टेशन. जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज आफ्टर द सेशन. एंड अगर इस सेशन का कोई पार्ट आपसे मिस होता है देन ऑल्सो डोंट वरी, द सेशन विल बी सेव्ड ऑन दिस लिंक ओनली. So I welcome Doctor to our session, and good evening, and thank you so much for joining us. Good evening, Purnima. And at the outset, I would like to thank Fertility Dose for this opportunity to interact with our patients and the answer to all their queries. So I will be happy to answer all the questions. So I think in the beginning, we would just start off with discussing a few things about the transfer process itself. Right. तो जब भी आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, हमें पता है. जैसे महिला का उम्र के ऊपर निर्भर करता है, क्या दवाइयां मिल रहा है, कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कैसे भ्रूण बने हैं. So the good quality embryo is also very important. And finally, at the last step, when everything is done, then comes the embryo transfer. And the outcome which we want from an IVF is a successful pregnancy, live birth. And then for a successful live birth, first is a successful pregnancy test. And therefore, embryo transfer is very important. Embryo transfer एक बहुत important पद्धति स्टेप रहता है आईवीएफ में, जो डिटरमाइन करता है कि सक्सेस रेट अच्छी होगी कि नहीं होगी. तो ये इट्स नेचुरल फॉर द पेशेंट्स. पेशेंट्स के स्वाभाविक है कि उनके मन में इनके बारे में क्वेश्चंस रहे, डाउट्स रहे. So generally, embryo transfer is not very difficult. Even though it is one of the most important steps, it is not a very difficult procedure.
It is generally done in awake stage and anesthesia is not required. And we tell few things to the patient. One is they should not be anxious. So at Right. one hand, patient is afraid, but on the other hand, they should not be stressed out or anxious because stress itself can cause problems by altering the hormonal milieu of the body. So stress से जो hormones की गड़बड़ी पैदा होती है body में, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो आपको एंशियस नहीं रहना है क्योंकि एम्ब्रायो ट्रांसफर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. तो जनरली हम लोग एम्ब्रायो ट्रांसफर आइदर जिस महीने भ्रूण तैयार होता है जिस साइकिल में, उस साइकिल में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो हमें फ्रेश एम्ब्रायो ट्रांसफर कहते हैं, या हम साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं. सो जो जिस साइकिल में भ्रूण तैयार हो रहा है, भ्रूण को हम फ्रीज करके अगले साइकिल में ट्रांसफर करते हैं. तो पहला सवाल मरीज के मन में ये रहता है कि हम इसी साइकिल में ट्रांसफर करें या फ्रोजन एम्ब्रायो ट्रांसफर में जाए, जो आप पूछे थे. तो अगर हम लोग अभी का देखते हैं तो मैक्सिमम हम लोग फ्रोजन एम्ब्रायो ट्रांसफर ही करते हैं, क्योंकि इसका कारण बहुत सारे हैं. एक तो है कि जब आईवीएफ में क्या नॉर्मली क्या होता है, जब शरीर में जिस साइकिल में आपका अंडे तैयार होते हैं, नेचुरली एक ही अंडा मैच्योर होता है. पर आईवीएफ में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने अंडे एक्टिव हुए हैं उस साइकिल में, उतने ही सारे अंडे, लगभग 10 से 12 अंडे को मैच्योर करें. तो ज्यादा अंडे बड़े हो रहे तो बॉडी का हार्मोन भी ज्यादा रहेगा नेचुरल साइकिल से. तो इसका इफेक्ट फिर आपके गर्भाशय के जो अंदर का लाइनिंग या एंडोमेट्रियम कहते हैं उसके ऊपर पड़ता है प्रभाव. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में एम्ब्रायो ट्रांसफर करें, इसलिए एम्ब्रायोस को फ्रीज करके अगले साइकिल में ट्रांसफर करते हैं, ताकि जिस साइकिल में अंडे तैयार होते हैं उसमें एक्सेस हार्मोन्स का जो खराब या डिलीटेरियस इफेक्ट है वो भ्रूण के ऊपर और एम्ब्रायो के एंडोमेट्रियम के ऊपर नहीं पड़े. तो फ्रोजन एम्ब्रायो ट्रांसफर. डॉक्टर एक चीज, लाइक जैसे आपने बोला फ्रोजन ट्रांसफर, सो इज देयर एनी नॉर्म टू सिलेक्ट कि वी शुड वेट फॉर 1 month, 2 month, 3 month? So how you select this time period, resting time period? रेस्ट बहुत सारे स्टडीज हुए इसके ऊपर, है ना, बट देयर इज एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन patient to patient. If you say that there is no advantage of waiting for 3-4 months over going for the frozen transfer the very next cycle, but obviously if the patient has a cyst, if we see on the day 2 of the cycle, generally after the pickup we call the patient on the second day of the cycle, if we see that the ovaries, they have not reverted to their normal size, or if there is a cyst or there is abnormal features in the ultrasound, then we may wait for 1 cycle, but there is no need of waiting for a long time. In majority of the patients at the center, we go the very next cycle for embryo transfer. Okay. So, and I think the procedure is quite easy and पेनफुल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ ये पूछ रहे हैं कि प्रोसीजर पेनफुल तो नहीं है, तो आप थोड़ी सी उसमें जस्ट एक्सप्लेन दैट प्रोसीजर सो दैट कि एक वो जो डर है लोगों के मन से वो निकल जाए. तो आप अगर पूरी आईवीएफ में पूछते हैं तो एम्ब्रायो ट्रांसफर ही एक प्रोसेस है जिसमें पेन नहीं होता है, आपको एहसास भी नहीं होगा कि एम्ब्रायो ट्रांसफर हो गई है. बहुत बार बहुत पेशेंट्स डरे हुए रहते हैं और फिर जब हो जाते पूछते हैं डॉक्टर साहब हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया, उनको पता भी नहीं चलता. तो जनरली मैक्सिमम जगह हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एम्ब्रायो ट्रांसफर करते हैं. तो पेशेंट को उस दिन पेशाब रोक के रखना है, दैट मीन्स फुल ब्लैडर रहना है. ऐसा नहीं है कि बिना खाए या एम्प्टी स्टमक में नहीं रहना है. हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल खाना पीना करके आइए. हम लोग एक टाइम दे देते हैं, जनरली जिस सेंटर के हिसाब से होता है, सुबह का टाइम या इवनिंग आफ्टरनून का टाइम, और ब्लैडर फुल रहना चाहिए. उस दिन मरीजों को बोला जाता है कि कोई कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स जैसे चीजें जो गंध रहे, है ना, वो सब यूज नहीं करने के लिए नहीं कर. और हाँ, और जनरली जब आपको ओटी में या जो ट्रांसफर रूम में जब बुलाया जाता है, तब हम लोग जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही लेटाया जाता है, पेट से अल्ट्रासाउंड किया जाता है. एक छोटी रिट्रैक्टर होता है
चम्मच जैसी, जिसको हम कस्को स्पेकुलम कहते हैं, उससे हम लोग अंदर का जो आपका गर्भाशय का मुंह है उसको विजुअलाइज करते हैं। और एक पतली कैथेटर होती है जो आप एक सोच सकते हैं रिफिल से भी, पेन का जो रिफिल है उससे भी पतली एक कैथेटर होती है, जो आपके गर्भाशय के मुंह से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस द्वारा अंदर डाली जाती है। और फिर जो लोडेड कैथेटर रहता है जिसमें भ्रूण रहता है वो अंदर हम लोग पुश कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये 5 मिनट से भी कम लगती है और कंप्लीटली पेनलेस रहती है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में। तो पेशेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं रहती है। राइट। कुछ पेशेंट्स में हो सकता है, जो आपके अगली सवाल हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में दिक्कत आ सकती है ट्रांसफर के टाइम। राइट। तो ऐसे कौन कौन से मरीज है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? तो अगर हम लोग लिटरेचर देखते हैं तो अराउंड 8 to 10% डिफिकल्ट ट्रांसफर्स रह सकते हैं, पर जनरली इससे कम भी रहता है। जहां किसी को कोई गर्भाशय का कोई पहले ऑपरेशन हुई हो, सर्जरी, या गर्भाशय के मुंह छोटी है या रसौली है, जैसे फाइब्रॉइड्स है गर्भाशय के मुंह के पास, वहां दिक्कत हो सकती है। बहुत बार एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से कि गर्भाशय आइदर मुड़ी हुई है, गर्भाशय के मुंह, या जो हम लोग बोलते हैं अक्यूटली एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्स्ड है या रेट्रोफ्लेक्स, कैथेटर पास नहीं कर पा रहा है। तो ये जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है बहुत बार ब्लैडर फुल करने से, पेशाब रोके रहने से ये करेक्ट हो जाते हैं। पर जहां आपकी जैसे अगर गर्भाशय का मुंह छोटी है, सर्वाइकल स्टेनोसिस है या कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसको करेक्ट करनी पड़ती है। तो अगर ट्रांसफर के टाइम डिफिकल्टी फेस करते हैं तो हम लोग बहुत बार, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो वहां स्टॉप करके हम लोग अगली बार ट्रांसफर के लिए फिर बुलाते हैं। और जनरली नेक्स्ट साइकिल में हम लोग गर्भाशय का मुंह अगर छोटा रहे तो हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक तरीके का एंडोस्कोपी है जो गर्भाशय के रास्ते से जाके गर्भाशय के अंदर का जगह को देखा जाता है। गर्भाशय की मुंह जो छोटी है या सर्विक्स जो छोटी है उसको डायलेट किया जाता है और उसके 1 से 2 महीने बाद हम लोग फिर ट्रांसफर के लिए बुलाते हैं। तो जनरली अगर इस कारण की वजह से होता है तो ट्रांसफर इजी हो जाता है। So, और ma'am, do we use local anesthesia for transfer also? कुछ नॉट केसेस में? एग्जैक्टली। हाँ देखिए, लोकल एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं कि डिफिकल्ट ट्रांसफर आपका लोकल एनेस्थेशिया देने से रिलीफ होगा, ऐसा नहीं है। मतलब देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गिविंग इट। पर अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है या पेशेंट को बहुत ज्यादा एंशियस है, या पेशेंट हम लोग अगर जैसे जब हम पेशेंट्स का स्कैन कर रहे हैं तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो गर्भाशय के रास्ते से स्कैन होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, तो बहुत बार हम लोग अंडर एनेस्थेशिया आईवी सेडेशन देके ट्रांसफर करते हैं जस्ट टू ओवरकम दैट फैक्ट। अगर एक्चुअली अगर देखो तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन योर ईज ऑफ ट्रांसफर। Okay, right. So, and doctor, someone is asking कि is it 100% safe? ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर सेफ है अगर सही तरीके से किया गया है। बहुत लोगों को ये रहता है कि इन्फेक्शन का डर रह सकता है, बहुत लोगों को सकता है गर्भाशय के अंदर पुश कर रहे हैं, पर ऐसा जनरली नहीं होता है। क्योंकि देखिए जब हम लोग ट्रांसफर के लिए लेते हैं तब आपका जो भी है हम लोग सारा कुछ देख के, सब कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद सब कुछ ऑप्टिमल कंडीशन है तभी हम लोग ट्रांसफर के लिए जाते हैं। तो ट्रांसफर इज जनरली सेफ if you see in that sense, matlab transfer procedure itself will not cause any harm to the patient. And one very important and common query during transfer, embryo transfer, आपने जैसे बताया ब्लैडर फुल, तो ये बहुत कई लोगों को बहुत दिमाग में एक टेंशन, एक स्ट्रेस रहता है कि यार ब्लैडर फुल है एंड OT table say when they shift me to my bed or my room. So for how long should I wait before going to washroom? ये बहुत
कॉमन है, और ये मेरे साथ भी था व्हेन आई वाज अंडरगोइंग माय आईवीएफ ट्रीटमेंट्स। तो बैक ऑफ द माइंड प्रेशर रहता था कि 10 मिनट मैं लेटूं, 15 मिनट लेटूं, कि बस भाग के वॉशरूम चले जाओ। तो व्हाट यू सजेस्ट कि कितना टाइम पीरियड, और क्या सच में डॉक्टर ऐसा कुछ है कि अगर गलती से हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उठ के सीधा वॉशरूम जाना पड़े तो वो एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और हम खुद भी फेस किए इन द सेंस कि when I was first learning, it was a trend that the patient should be shifted outside of the OT in a lying position, and then she would be lying for 30 minutes or sometimes an hour or even more, फिर घर में भी जाके complete bed rest ऐसा करके। पर ये जरूरी नहीं है, एकदम ही नहीं है, बल्कि हमारे ओटी में हम लोग पेशेंट्स का ट्रांसफर करके पेशेंट्स खुद उतर के चल के जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट दे कैन पास द यूरिन अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को लगता है कि हम खड़े हो गए ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा, टपक के गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत बार मैं भी जब शुरू में पेशेंट्स से क्रिटिसिज्म फेस किया, डॉक्टर साहब ने तो खड़ा कर दिया, तुरंत बोल दिया चल के जाओ। पर जनरली जब पॉजिटिव सक्सेस रेट्स आने लगे तो उनके भी मन में आया कि ये बात जरूरी नहीं है। और ये भी देखा गया है, स्टडीज में भी देखा गया है कि बेड रेस्ट इज नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल, इट इज मोर, यू कैन से मोर harmful, and patients can be mobile. It is better they are mobile after they transfer, after they undergo their embryo transfer procedure. Three important pointers to select IVF center. You can say there are many, like, okay, अगर हम अपने सेल्फ को मरीज के शूज में रखते हैं, if I am there in the patient's shoes, then yes, what you said, I will keep on searching the reviews, the stars received, and Right. Obviously the doctor reviews also, and sometimes it is very confusing. So the best thing for the patient is to visit the center itself and to assess. Generally दो तीन चीजें हैं जो सेंटर में सब कुछ एक ही सेंटर के अंदर है, जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आपका जो लैब सेंटर में ही है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, मतलब जो आपका हॉस्पिटल है या जो क्लिनिक है वही है, ऐसा नहीं है कि विजिटिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। दूसरा चीज है कि अगर सक्सेस रेट्स उस सेंटर के अच्छे हैं तो ये सब चीज आई थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि बिसाइड्स ऑब्वियसली आपके जो डॉक्टर है वो कितने एक्सपीरियंस्ड है, कितने आईवीएफ किए हैं, इसके ऊपर आपका तो एक ये रहेगा ही विश्वास रहना। पर इसके अलावा भी जो सेंटर का जो सक्सेस रेट्स है ना, जो इन हाउस आपका एक लैब जो भ्रूण विशेषज्ञ है वो वहीं के है, एवरीथिंग इज अंडर वन सेटअप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ईज यू कैन से ऑफ अ प्रोसेस के लिए। तो आप चूज करते वक्त ये सब चीजें देख के भी चॉइस कर सकते हैं। एंड in this era of social, we can say marketing, it really becomes very difficult. But I think if the success rates are the things which should, success rates and the patient safety, दोनों चीजें important है। पेशेंट आ रहे हमारे पास कि बच्चे हो, और दूसरा चीज है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो patient safety records plus your success rates, I think these two things should help you determine that which center you want to go. And after that you can always choose depending upon the doctors who are there. Yes. राइट। सो विजिट जो करना बहुत एडवांस्ड जरूरी है। आईवीएफ का जो भी एडवांस टेक्निक्स देते हैं, जैसे आपका इक्सी पद्धति हुआ, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हुआ, हैचिंग, लेजर असिस्टेड हैचिंग, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज आईवीएफ इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस also. So new technology also should be there in the center which is offering you an IVF. Yes. Right. तो आई थिंक पूरे उसको स्टडी करने के लिए हमें सेंटर विजिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज का ध्यान रखिए कि आपको टेस्ट करवाने के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। That is also very important. And again, if you are in Kolkata and you want to meet doctor, please let us know. Drop a small message. आप हमें email कर सकते हैं। And here in this session, I would advise you to visit our website. बहुत अच्छे articles हैं आपके पढ़ने के लिए। जरूरी नहीं सारे आर्टिकल्स बहुत हैवी माइंडेड हैं, बहुत लाइट वेट आर्टिकल्स भी हैं। वी
we are continuously adding fun articles also. आप हमारा YouTube चैनल विजिट कीजिए, we have very informative वीडियोस ओवर देयर, और ये वाला सेशन हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे सेव रहेगा. आपको लगता है कुछ आपने मिस किया तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच इट अगेन. एंड थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच. आप यहाँ आए, बहुत छोटा टॉपिक था बट कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, और हमने मिल के उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व किया. And yes, we have very like huge number of messages. Thank you ma'am for all these knowledge, thanks a lot for all these information. Thank you so much, informative session, thank you, very informative. And बहुत सारे हैं. So I think thank you viewers to be Thank you, with us. Purnima. Yes. एंड थैंक यू सो मच Thank मैम, you, आप Purnima. आए तो Yes. ये Yes. टॉपिक हमें पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए. So again, I thank you and thank you Shield Pharma for Shield Healthcare for arranging such informative sessions with us. We are here to help you out. So please log into our website Fertility Dose and stay tuned, stay connected, stay safe. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Purnima. It has been a pleasure interacting with you and all our viewers. Thank you very much.